شاعری جو ہے 2 چیزوں سے شروع ہوتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے، یا تو غربت شاعری کو جنم دیتی ہے یا عشق. تو میرے پاس عشق تو تھا نہیں. کشمیر لائف کی سیریز آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ سیریز جو ہے یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے کشمیر کے مصنفین کے حوالے سے، ان لکھنے والوں نام منسوب یہ سیریز ہے جو کشمیری ہیں، جموں کشمیر سے ہیں اور جموں کشمیر پر لکھتے ہیں، یا جموں کشمیر کے نہ بھی ہوں تو اگر جموں کشمیر میں لکھتے ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے آئے ہیں اس سیریز میں. تو آج کی اس کڑی میں ہم نے پرویز مانو صاحب کو دعوت دی ہے، جو شاعر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، ڈرامے بھی لکھتے ہیں، اور ان کا ایک ناول ابھی منظر عام پر آیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ تجزیہ نگار بھی ہیں، اور جو بھی لکھنے والا ہو وہ مضمون نگار ہوتا ہی ہے. پرویز صاحب آپ کا کشمیر لائف کے شو میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں کشمیر لائف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور میں یہاں تک پہنچا اب تک. پرویز صاحب شروعات ہم ناول سے کریں گے. اگر ہم بیسیکلی کشمیر میں کشمیری زبان میں ناول اور افسانے کا جو تصور ہے وہ بہت بعد کی بات ہے، مطلب وہ بہت پہلے سے نہیں تھا. ہمارے ہاں لوگ کتھائیں ہوا کرتی تھیں، کہانیاں ہوا کرتی تھیں، فارسی اور عربی سے ہم ٹرانسلیٹ داستانیں کیا کرتی تھی، لیکن کافی ٹائم کے بعد ناول آ گیا، اردو سے تھوڑا بعد میں آ گیا. جموں کشمیر میں اردو سرکاری زبان 100 سال 150 سال سے زیادہ ہی ہے، لیکن اردو میں جو ارتقاء زبان کا ہم دیکھتے ہیں اس ارتقاء کا مظہر ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے لکھنے والے، ہمارے کتنے شاعر، افسانہ نویس یا ناول نگار ملکی سطح پر ہم اگر دیکھیں تو وہاں ان کی پذیرائی ہوئی. تو اردو تو ہم بولتے ہیں، اردو تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اردو کی جو ترقی کے بہت سارے مراحل ہیں وہ جموں کشمیر کے حوالے سے مسنگ کیوں لگ رہے ہیں؟ جموں کشمیر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، جس میں سب سے پہلے کشمیری ہے، اس کے بعد اردو ہے، پھر ڈوگری ہے، پھر گوجری ہے، پھر پہاڑی ہے، پھر بلتی ہے، شینا ہے. مختلف قسم کی زبانیں ہیں، اور ہر زبان کا ادب جو ہے، جو ان کے لکھنے والے ہیں، مصنفین ہیں، جو تخلیق کار ہیں، انہوں نے اس کا ادب تخلیق کیا ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ کچھ کم ہوا ہے، کچھ ادب کسی زبان میں زیادہ ہوا ہے. جیسے کشمیر بہت پرانی زبان ہے کشمیری، تو یہاں کے جو رائٹر تھے انہوں نے کشمیری میں جو لکھا، اس کے بعد جو اردو میں تجربات ہوئے، قومی سطح پر جو تجربات ہوئے، انہوں نے اس کا اثر قبول کیا. جیسے ناول یہاں کسی نے نہیں لکھا تھا، ابھی آپ نے فرمایا. تو جب پریم چند، کرشن چندر، ان کے ناول مشہور ہوئے تو یہاں بھی لوگوں نے ان کا مطالعہ کیا. تو اردو تو پڑھتے تھے، سکول سے تو اردو کی تعلیم حاصل کی تھی جو مصنفین تھے یا جو تخلیق کار تھے، تو ان کو لگا کہ ہم بھی ایک تجربہ کریں. کچھ لوگوں نے اس میں تجربات کیے، تو پھر کشمیر میں کچھ ناول جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے. میری نظر میں تو کچھ ہیں، ایک سہون لال جی ہیں جن کے کچھ ناول ہیں، رحیم رہبر صاحب ہیں ان کے کچھ ناول ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہوں گے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو یہاں ناول لکھے گئے، بہت پہلے لکھے گئے. نیل کمل مسکائے، جیسے نور شاہ صاحب نے بے گھاٹ کی ناؤ، مخمور بدخشی صاحب ہیں اس میں، وحشی سید صاحب ہیں، دیپک کنول صاحب ہیں، جان محمد آزاد صاحب ہیں، فاروق رینزو صاحب ہیں. لیکن جو آپ پذیرائی کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے ممکن نہیں ہو سکی کہ باہر کے لوگ جو تھے، باہر کے رائٹر جو تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں کے جو لوگ کشمیری ہیں ان کا لہجہ کشمیری ہے، وہ سوچتے کشمیری میں اور لکھتے اردو میں. جس لیے مطلب اس کے لیے جب آپ کی کتاب گئی انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کی. اس کا تجربہ مجھے ہوا ہے، کیونکہ میں پہاڑی میں بھی لکھتا تھا. جب میری کوئی چیز گئی انہوں نے کہا اچھا یہ تو پہاڑی کا رائٹر ہے. ارے جو میری تخلیق آپ اس پہ بات کیجئے نا، آپ کو میری ذات سے کیا ہے، میں سندھی ہوں، میں گجراتی ہوں، میں پروڈکٹ بات کیجئے، اس پہ بات کیجئے. وہ بات ہوئی نہیں. تو وہاں بھی کوئی ہماری وکالت کرنے والا تھا نہیں جو ہماری وکالت کرتا. لہٰذا جو کشمیر کا جو ادب تھا جموں کشمیر کا، زیادہ تر کشمیر میں ہی اردو لکھی گئی، یا پنچ رجوری میں، جموں میں تو بہت کم لکھنے والے تھے. وہ ایک طرف پڑے کا پڑا رہ گیا جس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. کشمیر میں کتابوں کی اشاعت و فروخت کا ایک معتبر ادارہ گلشن بکس 1932 سے میدان عمل میں. کشمیر کی تاریخ ہو یا جغرافیہ، تہذیب ہو یا تمدن، کہانی ہو یا تمثیل، تصوف ہو یا تشخص، ادارہ ایک ہی ہے،
जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। ये बात सही है कि कश्मीर का लिखने वाला जो है वो साहिब ज़ुबान नहीं है, लेकिन वही बात उर्दू अंग्रेज़ी के बारे में भी कही जा सकती है। लेकिन अंग्रेज़ी में जो किताबें बहुत सारी लिखी गई, इनफैक्ट अंग्रेज़ी पोइट्री की अगर हम बात कर लें तो वो उनकी रिकॉग्निशन ग्लोबल लेवल पे भी हो गई। कुछ नावल्स आ गए, मिर्ज़ा वहीद की नावल आ गई, या कुछ मेमोइर्स आ गए, कुछ बहुत सारी किताबें, बशारत पीर की किताब आ गई, शहनाज की आ गई किताब। लेकिन उर्दू में ये सिचुएशन हम देख नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए है कि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जब आप इंग्लिश में लिखेंगे वो बैनुल-अक़वामी सतह पर चली जाएगी। उर्दू जो है वो दिल्ली तक जाएगी। दिल्ली में आपका कितना हल्का है जो आपको बूस्ट करेगा, वहाँ पर आपकी चीज़ को आगे ले जाएगा। पब्लिशर का ये है, उसका काम है किताब बेचना, उसका काम नहीं है कंपटीशन में आपकी किताब जमा कराएगा। वो क्यों जाएगा? उसको अपने पैसों से मतलब है। तो ये एफर्ट राइटर को खुद करना है वहाँ पहुँचने के लिए। उसका एक तरीका है जो मेरी समझ में आ रहा है कि आपकी किताब जो है उसका ट्रांसलेशन उर्दू से या कश्मीरी से जो है इंग्लिश में किया जाए, तो आपके ख्यालात जो हैं वहाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर पता चलेंगे कि आपके ख्यालात क्या हैं। नेचुरली बात ख्यालात पे होती है, ज़बान पे बात बाद में होगी। आप देखते हैं पिछले दिनों जो एक जिस नावल को नोबेल प्राइज़ मिला है वो उस ज़बान को नहीं मिला है, जिसने ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन के बाद मिला है उसको। इसका मतलब ये है कि ये इंग्लिश को मिला है। फिर ये नावल, ये जो अवार्ड है नोबेल प्राइज, ये जो है ये ऑथर को नहीं मिला है, ये किसको मिला है? ट्रांसलेटर को मिला है। तो ऑथर का इसमें रोल ही नहीं बना बेचारे को कोई, वो तो अपनी ज़बान में लिख रहा है। मुझे चीज़ पसंद आई, मैंने उठाई तो मैंने ट्रांसलेट की तो चल गया, एक सिक्का था चल गया ऐसे। ये बात है। परवेज साहब, अदब के हवाले से, कहानी के हवाले से जो पूरे मुल्क में मंडी है वो बॉलीवुड है। बिल्कुल, हाँ सही। तो एक ज़माना था कि जब बहुत सारे लिखने वाले जम्मू कश्मीर से थे, कहानियाँ लिखते थे और उन कहानियों पर फिल्में बनती थी, लेकिन ये सिलसिला भी बंद हो गया। हालांकि एक तरफ से फोकस लग रहा है कि बॉलीवुड को हम आने के लिए पैसे भी दे रहे हैं, सरकारी सतह पे एक स्कीम भी है उस हवाले से, लेकिन वो यहाँ की लोकेशंस इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ की कहानियाँ भी इस्तेमाल नहीं हो रही। उसमें कोई डिटैचमेंट है हमारा यहाँ? उसमें मैं अर्ज करता चलूँ कि मेरा जैसे नावल था सारे जहाँ का दर्द, वो किसी लेवल पे पहुँचा, बात भी हुई उस पे, तो लास्ट में उसमें ये हुआ कि इसमें हम जो है एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग मीन्स कि उसमें वो अपने सीन डालेंगे जो कश्मीर में रहकर मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने उनको मना किया कि मैं इसमें ये चीज़ें ऐड नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उसमें वो आपको दिखाएंगे नामासाद हालात मैंने डिस्कस किए, लेकिन मैंने तहदारी से किए, वो उसको थोड़ा एग्जैजरेट करेंगे और वो फिर वो एक किस्म का ये बन जाएगा, नाम मेरा जाएगा फलां के नावल पे बन रहा है। तो मैंने इनकार कर दिया। यहाँ शहनाज बशीर का नावल था हाफ विडो, उस पर बात हुई और वो यहाँ भी आए, बैठे भी बात हुई और लास्ट में यही बात हुई कि इसमें हम कुछ सीन बदलाएंगे। तो ऑथर कह रहा है कि आप जो सीन बदलाएंगे पहले वो मुझे लिख कर दीजिए कहाँ कहाँ सीन बदलाने हैं। वो उनको मंजूर नहीं है कि उसमें वो फैश डांस भी डालेंगे, फैश कलामी भी होगी, लेकिन वो क्रेडिट जो है वो आपको जाएगा जो ऑथर है। उस वक्त जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, उस वक्त ऑथर के सब चढ़ेगा। इसलिए यहाँ हम जो लोग हैं हम उस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो समाज है, ये बड़ा सिविलाइज्ड है और पाकीज़ा ख्यालात हैं इनके। अगर कोई किसी को गाली भी देगा या बुरा भी कहेगा तो बड़े तहजीबी लिहाज में कहेगा, दूसरे साथ वाले को पता नहीं चलेगा। आप देखें कश्मीरी में कई ऐसी बातें हैं जो दूसरे को समझ नहीं आती हैं। अब वो चीज़ें जब खुलकर सामने आएगी तो इससे जो एक हर्ट होता है, जो ऑथर है वो हर्ट होता है और हम कोशिश भी नहीं करते हमारी चीज़ वहाँ जाए। हाँ, अब आप कह रही है पैसा भी दे रही है गवर्नमेंट, ये भी दे रही है, फिर आप कोई चीज़ बेचते हैं तो फिर आपको जो खरीदार है उसके हिसाब से लिखनी है वो चीज़। सही बात है। मेरी चीज़ मेरे हिसाब से वो चीज़ नहीं रहेगी, वो उसके हिसाब से लिखनी है। जैसे अभी मैंने आपको एक कहानी का जिक्र किया, यहाँ नहीं चलेगी वहाँ चलेगी जी। मार्केट का आप मार्केट देखेंगे, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रोड्यूसर हैं, आप लाखों रुपए अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपको ये चाहिए। जैसे आप गाने देख रहे हैं आजकल के, आपको वही मुख्तसर ये कि आपको अपना स्टैंडर्ड लो करना है और वो लिखने वाला कंप्रोमाइज नहीं कर, खासकर कश्मीर का कम से कम। अब कुछ लोग शोहरत के भूखे होते हैं लेकिन बाद में जो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है वो ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट पर हम एक आखिरी बात कर लेंगे, उसके बाद हम आपके फन और आपके कंट्रीब्यूशंस के हवाले से बात करेंगे। आखिर में एक बात इस मामले पर पूछूं कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदबी इदारे हैं,
कल्चरल एकेडमी है, हमारे पास मुल्क की सतह पर साहित्य एकेडमी है। जब हम शायरी की बात करते हैं, नगमों की बात करते हैं, तो उसके लिए एक अलग नाट्य एकेडमी है। इदारों का कोई रोल नहीं बनता या ऐसी गुंजाइश तलाश नहीं की गई कि अगर हम साल में 2 नावल या 3 नावल लिखते हैं तो उनमें से एक जो अच्छा नावल हो उसको एकेडमी या साहित्य एकेडमी ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में छाप दे, या उसके लिए ग्रांट मुकर्रर कर दे कि जो बेहतर नावल हो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करें, ताकि ये ज़्यादा लोगों तक आपकी कहानी पहुंच पाए। मसूद साहब, मैं इसमें ये अर्ज करूं कि जब उनके अपने कुछ लवाजमात हैं, जो साहित्य एकेडमी ट्रांसलेशन कराती है वो वही नावल ट्रांसलेशन या वही किताब ट्रांसलेट करवाती है जिसको वो अवार्ड से नवाजेंगे। अब मसला ये है कि यहाँ आज तक किसी को साहित्य एकेडमी अवार्ड उर्दू में क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि जो हमारे असलाफ थे उन्होंने कोशिश ही नहीं की कभी कि अगर कोई आदमी कानून में अंधा राजा, अगर कोई राजा बन गया, उसने कहा कि अगर मैं परवेज़ का नाम दूंगा मुझे आज तक नहीं मिला, इसको क्यों मिलेगा? मैं मसूद साहब का नाम दूंगा मुझे आज तक नहीं मिला, इसको क्यों मिलेगा? ये आपसी चपकलिश की नज़र हो गए तो वैसे का वैसा पड़ा रहा। अब इन इदारों की जिम्मेदारी है, क्योंकि कल्चर एकेडमी में तो आपको पता है 2019 से बिल्कुल जो है उनकी अदबी सरगर्मियाँ मांद पड़ चुकी थी। अब कुछ पिछले अरसे से वो मुशायरे वगैरह बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ के कुछ मामलात है, खैर वो उनके दफ्तरी मामलात है, तो अभी वो उन पे काम कर रहे हैं। अभी उसमें हम कुछ नहीं कह सकते कि वो इन चीज़ों को नोट्स करेंगे कि नहीं करेंगे। नाज़रीन, मैं बता दूं, परवेज़ मानू साहब 1984 से लिख रहे हैं और अभी तक उन्होंने 30 किताबें लिखी हैं। इनमें से कुछ नावल हैं, कुछ अफसाने के मजमूए हैं, कुछ ट्रांसलेशन हैं और कुछ शेर शायरी है। लेकिन इनका तवल्लुद श्रीनगर में हुआ, शानपुरा के इलाके से, और बाद में उनके वालिद साहब सरकारी मुलाजिम थे तो उनकी ड्यूटी पुंछ राजौरी बेल्ट में तो ये उनके साथ ही उनकी पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई मोस्टली पुंछ और राजौरी इलाकों में हुई है, और जिसकी बदौलत उन्होंने पहाड़ी ज़ुबान भी सीख ली और उसमें भी लिखना शुरू। परवेज़ साहब में एक आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो 2 माहौलों में हुई, आप पैदा कश्मीरी हुए, बाद में पढ़ाई आपकी राजौरी पुंछ में हो गए। ये जो 2 माहौल हैं, अलग अलग माहौल, श्रीनगर और पुंछ राजौरी, क्या फ़र्क लगा आपको इन 2 सोसाइटीज़ में, जिनकी झलक बाद में हम आपके लिखने में देखते हैं? किन चीज़ों ने आपको मुतासिर किया? फॉर इंस्टेंस मैं ये अर्ज़ करूं कि पुंछ राजौरी जो है वहाँ के लोग जो है सीधा सादा लोग हैं, उनका रहन सहन सीधा सादा है, उनका खाना पीना सीधा सादा है, उनका उठना बैठना सीधा सादा है। एक तो आपको वो माहौल जो है आपके अंदर आ गया, कम्प्लेक्स नहीं है जैसे श्रीनगर का माहौल है। जब आप श्रीनगर में आते हैं, यहाँ आपको पता है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे मतलब यहाँ का माहौल ही अलग है। जब आप ये 2 चीजें लेकर चलते हैं, एक राइटर के लिए बहुत बड़ा एक भट्टी मिलती है, तजुर्बात की भट्टी होती है, जिसमें से वो चाहे सोने को कुंदन बनाकर निकाल सकता है। ये चीजें आपकी राइटिंग में काम आती हैं। कृष्ण चंद्र जो है वो पुंछ के नहीं थे, लेकिन उनका पालन पोषण पुंछ में हुआ, पढ़ाई लिखाई पुंछ में हुई। उनकी हर तहरीर में आप पुंछ का जिक्र देखेंगे। मेरी यादों के चनारा पढ़ लीजिए, पुंछ की एक एक चीज़, पुंछ की जो दवाइयाँ हैं वो हैं, फल हैं, सड़कें हैं, उनके मोहल्ले हैं, उनके नाम हैं, वो सारी चीज़ें उसने उसमें इस्तेमाल की है। अगर वो पुंछ में नहीं होता, उसको कहाँ मालूम होता सिमलू क्या होते हैं, उसको कहाँ पता होता बटंगी क्या होती है, उसको क्या पता होता कि जो खीरा है उसको हम ककड़ी कहते हैं, उसको नहीं पता था। लेकिन ये उस माहौल में रहा, वो चीज़ें सीखी। फिर वही शख्स जब बॉम्बे में पहुंचता है, फिर लिखता है, वही बॉम्बे का कल्चर लेकर वो लिखता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें उसके जहन के सांचे में कहीं ना कहीं जो है वो फिट हो गई हैं। अब जैसे आपके पास दूध बेचने वाला है, उसके पास A ग्रेड दूध भी है और B ग्रेड दूध भी है। अब अगर उसने किसी को मीडियम देना है, वो 1 लोटा इसमें से निकालेगा, 1 इसमें निकालेगा, डालेगा उसके बर्तन में। यही चीज़ उस राइटर के पास होती है कि आप उसमें से कुछ चीज़ ले सकते हैं, इसमें से कुछ चीज़ ले सकते हैं। मेरा जो पहला नावल आया था वो पहाड़ी में था, तती छां, उसमें दोनों चीज़ें मिक्स है। जो गाँव से एक आदमी उतरा शहर में, वहाँ क्या हालात थे और शहर में आकर क्या हालात हुए। उसके बाद दूसरा नावल आया, वो पूरा उर्दू में था और उसका पस मंजर था उर्दू ही था, तो नेचुरली उर्दू में ही आएगा। वो एक राइटर के लिए जितनी जगह वो घूमेगा उसके लिए एक ये तजुर्बात जो है ना काम आते हैं आगे राष्ट्र में जाकर। आपकी क्या यादें हैं पुंछ के हवाले से? यादें मेरी ये है कि अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पर, मुझे अदबी माहौल वहीं मिला जहाँ कुछ लोगों ने, मतलब मैंने 84 से 5 से लिखना शुरू किया, तो लिख कर मैं रखता रहा। पर जब दोस्त यार मिलते रहे तो देखते, भाई आप तो अच्छा लिखते हो, आप भेजो। उस वक्त पुंछ में कोई रिसाला नहीं आता था। एक अखबार आता था हिंद समाचार, जो बहुत बड़ा अखबार माना जाता उस वक्त, जिसकी मुझे लगता है कि हज़ारों कापियाँ वहाँ आती थी।
تو جب ایک دوست کا دیکھا لکھا ہوا تو میں بھی تھوڑا متاثر ہوا. میں نے اس کو کہا مجھے ایڈریس دے دو. میں نے کہانی بھیجی, چھپ گئی. پہلی کہانی بھیجی میں نے, چھپ گئی تو میرا حوصلہ بڑھا, میں نے اور لکھنا شروع کیا. چھوٹا شہر ہے, پتہ چلا یہ پرویز مایوس کون ہے. پہلے مایوس لکھتا تھا میں, تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو مجھے لوگ ملے یار آپ کی کہانی بڑی اچھی تھی, آپ کی کہانی یہ تھا اس میں, یہ تھا یہ. تو چھپنا شروع کیا میں نے. ساتھ میں وہاں چراغ حسن حسرت پونچھ کی ایک بہت بڑی ہستی تھی, بعد میں وہ پارٹیشن کے پار چلے گئے. ان کے نام پر ہم نے ایک وہاں کلب بنایا, بزم یادگار حسرت. ان کے بھانجے بھی ہمارے ساتھ تھے, وہ لے کر تو سرگرمیاں شروع کی. تو آہستہ آہستہ ماحول مل گیا, اس میں ہم پروان چڑھے. شیخ سجاد پونچھی نے تھوڑا سا وہاں پونچھ میں ایک ماحول بنایا. مشاعروں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں سینئر اور نئے لکھنے والے آپس میں گھل مل گئے. تو وہاں سے یہ یادیں جو ہیں, یہ ادب جو ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے پونچھ کی دین ہے. تو اگر میں پونچھ میں نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ادیب ہوتا یا میں رائٹر ہوتا. مایوس کس وجہ سے تھے, اور پھر کیا آپ مایوسی سے مانوس ہو گئے؟ اور ایکچولی شاعری جو ہے دو چیزوں سے شروع ہوتی ہے, یہ میرا تجربہ ہے. یا تو غربت شاعری کو جنم دیتی ہے یا عشق. تو میرے پاس عشق تو تھا نہیں, غربت تھی. تو غربت میں آپ کے ذہن میں ہزاروں سوال کل بلاتے ہیں, کیا کریں گے آپ. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بار شعر لکھا کہ کئی دنوں میں گھروں سے دھواں نہیں نکلا. ابتدائی دور کا شعر ہے. کئی دنوں میں گھروں سے دھواں نہیں نکلا, یہ کس امیر نے مفلس سے چھین لی روٹی. تو جب یہ شعر عام ہو گیا وہاں تو کس کا ہے, فلاں کا فلاں کا ہے. لوگ بھی پوچھنے لگے, کوئی نام شام تھا نہیں. تو انہوں نے کہا یار آپ تخلص رکھو گے. میں نے کہا یار میں اداس ہی رہتا ہوں, میں کیا تخلص رکھوں. تو میں نے مایوس رکھ لیا. تو جب مایوس اچھا ہو گیا, پہلی کتاب میری چھپی 1992 میں, بیتے لمحوں کی سوگاتیں. تو خیر اس وقت کیا معیار رہا ہوگا لیکن چھپ گئی, ہاتھوں ہاتھ بکی, بہت اچھی پذیرائی ہوئی. تو ساتھ میں میرے اس کے بعد افسانوں کا مجموعہ چھپا 95 میں, شکارے کی موت. تو اس میں بھی یہی نام تھا. میرے ایک بزرگ تھے وہاں, محمد بانڈے صاحب. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اتنا اچھا لکھتا ہے, تو اتنا اچھا مسکراتا ہے, یہ تو نے یہ مایوس کے رکھا ہے تخلص. میں نے کہا سر ملا نہیں کچھ ہے وہ. اس نے کہا نہیں یہ بدلانا ہے بدلانا ہے بدلانا ہے. ایک دن مجھے میں نے تیرا تخلص ڈھونڈا ہے, اس میں کچھ ہیر پھیر نہیں کرنا ہے. میں نے کہا بتائیے. اس نے کہا مانوس رکھ لو. مایوس اور مانوس میں زیادہ فرق نہیں. تو دوسرا جب مشاعرہ ہوا تو مجھے اسی نام سے بلایا گیا, پرویز مانوس. اور سارے دیکھ رہے ہیں کہ نیا لکھنے والا ہے. جب میں چڑھا اسٹیج پہ تو دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو مایوس لکھتا تھا. تو وہاں سے میں نے یہ پھر چینج کیا. تو اس کے بعد ماشاءاللہ کتاب وہی تھی, ایڈیشن نیا تھا. یہ بیسیکلی ایک ناول جو کشمیر کے مطلب جو نامساعد حالات ہیں اس پر لکھا ہے ایک ناول. بالکل. تو اس کا سینٹرل جو تھیم ہے وہ آپ اس کو کیسے ڈیکنسٹرکٹ کریں گے؟ کشمیر جو ہے, کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر گھر سے آپ کو ایک کہانی ملے گی, ہر گھر سے ایک کہانی ملے گی. اور پھر جب آپ اس کہانی کی کڑیاں جوڑنا شروع کریں گے وہ آٹومیٹکلی ایک ناول بن جائے گا. ناول اور کہانی میں یہی فرق ہے. ناول کہانی چھوٹی سی ہے, ناول ضخیم ہے. کہ میرے ایک دوست تھے, انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا میں ناول لکھ رہا ہوں. اس وقت میں نے 150 پیج لکھے تھے. انہوں نے کہا کتنا ہے, میں نے کہا 150. اس نے کہا یار 150 پیج کوئی ناول ہوتا ہے, کم سے کم 300 پیج کا ہونا چاہیے. وہ کرتے کرتے 345 پیج ہو گیا پھر وہ ناول. اس وقت جب یہ کہانیاں جڑتی ہیں, یہ ملٹی ڈائمینشن اسٹوری اس میں بنتی ہے, تو یہ ایک ناول کی شکل اختیار کرتا ہے. لہذا بہت سارے پہلو ہیں کشمیر میں نامساعد حالات کے حوالے سے جس پہ بات رائٹر کر سکتا ہے. اور کچھ لوگ مصلحتاً نہیں کرتے ہیں کیونکہ صاف ستھرے انداز میں کرنا ہے, اور آپ نے بڑے طریقے سے بات کرنی ہے کہ کوئی ایک سائیڈ نہ رہ جائے, دونوں طرف سے بات کرنی ہے. آپ نے ابھی تک 4-5 ناول لکھے ہیں, تو ان میں کوئی کہانی ہے جو محض کہانی ہے, حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیے مسعود صاحب, کہانی آج کے دور میں کہانی وہ مانی جاتی ہے کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق رہا ہو. نام فرضی ہوں گے اس میں, واقعات وہی ہوں گے, نام فرضی ہوں گے, جگہ جو ہیں اس کی جو جگہ ہیں وہ فرضی ہوں گی, لیکن کہانی تو وہی ہے نا. کہانی وہی ہوگی جو آپ لکھ رہے ہیں. پھر یہ کہنے کا انداز ہے, جو افسانہ نگار ہے اس کے کہنے کا ڈھنگ ہے کہ وہ اس کو پیش کیسے کرے. میری ایک کہانی چھپی مجھے یاد ہے, تو مجھے کسی نے پلوامہ سے فون کیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ فلاں ہیں, پرویز مانوس صاحب ہیں. اس نے کہا جناب میں آپ کو سیب کی ایک پیٹی بھیجنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس خوشی میں؟ میں پلوامہ کا ہوں, میرا باغ ہے, یہ ہے. ان کا نام ایوب صاحب ہے. کہتا جی میں نے آپ کی آج ایک افسانہ پڑھا یہ, لیکن آپ کبھی آئے پلوامہ؟ میں نے کہا نہیں, یہ میرے پڑوس کا مسئلہ ہے اور پوری کہانی وہی ہے. میں اپنی جگہ سوچ رہا ہوں, میں کبھی پلوامہ گیا نہیں, تو یہ کہاں سے آ گیا. لیکن یہ میرے ذہن کا جو تخیل تھا یہ اس میں یہ جڑ گیا کہیں کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے, یہ ایسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا, کیسے ہوگا. لیکن وہ برابر ہو گیا. باپ مر گیا, بیٹے نے کہا میں اتنے دور سے نہیں آ سکتا, میں بعد میں آؤں گا. 6 مہینے کے بعد بیٹا آیا تو پہلے اس نے اس کا وہ میرے آنے تک
सामान नहीं खोलना, जब खोला तो बाद में वो जो आया वो किस चीज के लिए आया वो तो पता ही है, लेकिन उन्होंने कहा जी ये मेरी कहानी है, तो मुझे खुशी हुई कि हकीकत का अक्स था इसमें। अब आप देख लीजिए, मतलब सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप रिपोर्टिंग और अफसाने में तो फर्क है ना। रिपोर्टर जो है वो तो सीधा रिपोर्ट करेगा यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कहानीकार को ये कहानी कहने का ढंग होना चाहिए, कैसे कहेगा ये दो यही फर्क है इसमें और उसमें। जो हमारे लिखने वाले हैं बहुत एक मखसूस परसेंटेज लिख पाती है, हालांकि जो बात कर सकता है वो लिख सकता है, और जो लिख सकता है वो कहानीकार भी हो सकता है, मुसन्निफ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि हर एक कहानीकार हो जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो नई जनरेशन है इसमें एम्फेसिस अंग्रेजी पर है, उर्दू और कश्मीरी तो बाद की बातें तरजीहात में शामिल है, क्या लगता है आपको कि नई जनरेशन में कुछ है सुध बुद्ध उर्दू पिकअप करने का, कुछ नावल से कुछ ऐसा लग रहा है आपको, कुछ फीलर्स हैं आप? 2019 से पहले मुझे लगा कि ऐसा कुछ ये नहीं था, लेकिन 2019 में या कोविड जब आया, लोग बेकार हो गए, लोगों ने फिर किताबें पढ़नी शुरू की। फिर वो फोन करके कहते थे यार आपके पास वो किताब है जरा देना, मैं पढ़ूंगा। तो मैं भी परेशान, आज तक कभी नहीं इसने मांगी, मैंने कहा ले लो पढ़ो यार। तो ये एक माहौल बन गया। कश्मीर इस वक्त जो सरहद पार से बहुत सारे नावल छप रहे हैं, और वो नावल ऐसे हैं कि उनपे हर नावल पे एक ड्रामा बनता है, उस पे हर नावल पे एक निमरा अहमद है, उनके नावल छपते हैं बहुत सारे। मेरी बेटी ने भी एक दिन नावल लाया पीरे कामिल, वो पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा नहीं, मैं सच को मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि जब पढ़ता हूँ ना मैं तो मेरा वो जो ख्यालात मिक्स हो जाएंगे, फिर कल लोग कहेंगे यार ये उसके साथ मेल खा रहा है, ये इसके साथ। मैंने नाम ही देखा, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहा मुझे बताना बाद में इसमें क्या है ये वो। तो 500 रुपये का नावल है। तो एक दिन मैं बाजार से गुजर रहा हूँ, यहाँ मैंने कॉलेज की 2 लड़कियाँ देखी, वुमेन्स कॉलेज की, वो यहाँ पर किताबें ढूंढ रहे थे। मैं अखबार लेने गया, एक ने वो नावल उठाया, 500 रुपये दिए, तो दूसरे ने एक और नावल उठाया, वो भी उसी का था, निमरा अहमद का, तो 500 रुपये दिए, वो ले गए। अब मैं अपनी जगह बड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा यार कमाल है, ये कॉलेज की लड़कियां हैं, ये 500 रुपया खर्च कर नावल पढ़ेंगी, ये तो कितनी कमाल की बात है, और वो भी उर्दू का नावल पढ़ेंगी ये। तो ये नावल यही तक नहीं रहेगा महदूद, अपनी दूसरी सहेली को देगी, दूसरी तीसरी सहेली को देगी, जैसे किताब चलती है। हमने भी शुरू में ऐसे ही किया। जब मैं यहाँ था 80s में, 84 83 में, तो हम अब्दुल्ला न्यूज एजेंसी पे जाते थे, तो वहाँ से एक नावल लाते थे 5 रुपए का। गुलशन नंदा का नावल पढ़ा 5 रुपए का, एक और लाया, 10 हो गए 10 रुपए। दूसरे दिन वो नावल दोनों उसको दिए, वहां से एक नावल और लिया। नावल का कुछ किस्सा नहीं, नावल का वहीं का, ये ऐसे सिलसिला चलता रहा। तो मेरे जहन में बहुत सारे मतलब मवाद पैदा हो गए, जितना मैंने पढ़ा हुआ था। उस हिसाब से मुझे लगता है कि उर्दू का मुस्तकबिल जो है वो तारीख नहीं है, ताबनाक है। और आप देख लें इस वक्त शायरी जो है नए लड़के कर रहे हैं, और बहुत बेहतर शायरी कर रहे हैं। जो हमारे असलाफों ने शायरी की है उससे अच्छी शायरी कर रहे हैं, और आम फहम अल्फाज में शायरी कर रहे हैं। उसमें एज वेल एज लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, दोनों हैं उसमें। कुछ पिछले दिनों 1-2 आए भी, मजमूए भी सामने आए, और एक नए लड़के 2-3 लड़के हैं। हमारे साथ कई लोग आते हैं, वो कहते हैं ज़रा इसको नज़र मारिए, देखिए। हम उनको समझाते हैं कि इसमें ये है। अब उसमें एक चीज़ है, जिसको शौक़ है वो सीखेगा, भैया बेटा इसमें अरूज नहीं है, इसमें ये है, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, सर बताइए अरूज क्या, कैसे हम सीखेंगे, ये किताब है, इस पर नज़र मारो, फिर हमारे साथ कन्वर्सेशन करो। तो मुझे खुशी होती है कि बरक्स इंग्लिश के अगर उर्दू का कोई मेरे साथ रब्ता करेगा तो मैं उसमें उसको ज़रूर हेल्प करूँगा। और इस हिसाब से जो है आप देख लीजिए इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में उर्दू के कितने स्टूडेंट निकल रहे हैं। जब अगर उर्दू का फ्यूचर नहीं होता, लोग उर्दू सब्जेक्ट क्यों लेते? इसका मतलब ये है कि कश्मीर में उर्दू के अभी बहुत सारे इम्कानात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परवेज़ मानूस साहब की, जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया, बहुत सारी किताबें आई हैं, और उनमें से बहुत सारी किताबों की पज़ीराई भी हुई है, अवार्ड्स मिले हैं। कल्चरल अकेडमी ने इनकी 2 किताबों को 2007 और 2008 में इनाम दिया है, बेस्ट पब्लिकेशंस रही वो अपने सिनफ में, बेस्ट बुक प्राइज़ किताब रही। उन्होंने ट्रांसलेट भी की एक किताब, और उसको भी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उनके 2 अभी ड्रामे रहे हैं, जिनमें एक फिर सुबह होगी और दूसरी औलाद नाम का एक ड्रामा जो टैगोर हॉल में इनेक्ट किया गया, उनको भी बेस्ट ड्रामे करार दिया गया। लेकिन परवेज़ साहब, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि आपने 3 कल्चर बहुत नज़दीक से देखे हैं। कश्मीरी कल्चर देखा है, पहाड़ी कल्चर देखा है, गुजर कल्चर देखा है। मैं भी कश्मीरी हूँ, आप भी कश्मीरी हैं, हम तो ये समझते हैं, और मैं नाज़रीन भी बेहतर समझते हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादा हम फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि गुजर और पहाड़ी कल्चर में फ़र्क क्या है। मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है। गोजरी की ज़बान अलग है, गोजरी की ज़बान जो है वो उर्दू के बहुत नज़दीक है, और पहाड़ी जो है पंजाबी के बहुत नज़दीक है। अच्छा।
दो चीजें हैं। ये हो गया जबानों का फर्क, रहन सहन कल्चर उनका एक जैसा है। गुजर लोग जो हैं उसमें खाना बदोश भी आते हैं, वो गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं, दूर दराज इलाकों में अपने माल मवेशी लेकर चले जाते हैं, वहाँ उनके छोटे छोटे ढोक होते हैं। कई नावलों में मैंने भी उसका जिक्र किया है मैंने। इसी तरह पहाड़ी लोग जो हैं वो भी अपने मखसूस इलाकों में जाते हैं, जिस तरफ जहाँ हैं ज़्यादा, अगर यहाँ करना में है, उड़ी में है कहीं, तो वो वहाँ जाते हैं, तो गुजर लोग वहाँ जाते हैं। बाकी खाना पीना उनका वही है, वही मक्की की रोटी वो भी गुजर भी खाता है, वही मक्की की रोटी पहाड़ी खाता है, वही मक्खन जो है पहाड़ी खाता है, वही गुजर खाता है, वही दही वो खाता है, वही दही ये खाता है। ज़्यादातर मक्की का इस्तेमाल होता है वहाँ पर, ख़ास फ़र्क कुछ नहीं है। अब सिर्फ ये एक सियासी तरीक़ाकार भी हो सकता है, अलग अलग करने का कोई तरीक़ाकार हो सकता है, अपने अपने सियासी मुफादात होते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अलबत्ता फ़र्क तो कुछ नहीं है। कश्मीरी कल्चर एक अलग कल्चर है, इसका उसके साथ कोई जोड़ नहीं। इस वक्त आपकी मसरूफियत क्या है? आप मुदर्रिस हैं वो मैं जानता हूँ, बिल्कुल, लेकिन अदब के हवाले से आपकी अब क्या मसरूफियत है आजकल? मेरा कोई जो वक्त है ना बेकार नहीं जाता है। ये मैं आपके पास आया हुआ हूँ तो मुझे लगता है कि ये वक्त जो है वक्त का ज़िया हुआ। मैं बेकार नहीं बैठता, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। ये नावल जो है मेरा इश्क जिसने भी किया, जो अभी मंजर आम पर आया है, भी रिलीज़ नहीं हुआ है, 5 साल का ये मेरा काम है, 5 साल का। इससे पहले जो किताब है मेरी अभी आपने देखी, तकमील इश्क शायरी की किताब है, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ। उर्दू अफसानों के जो तज्ज़िये हैं उन पे काम कर रहा हूँ। 2 वालीम पे इंशाल्लाह वो जनवरी में आ जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा शेरी मजमुआ जो है उस वक्त तैयार है। बच्चों पे मैंने अभी बात नहीं, बच्चों की मैंने 2 किताबें की हैं मैंने। एक पापा जल्दी आ जाना जिसमें कहानियाँ हैं, एक है चंदा मामा दूर के जिसमें नज़में हैं, एक और किताब जो है इस वक्त वो ज़ेर तरतीब है, चांद की लोरी, बच्चों के अदब, क्योंकि बच्चों के अदब पर बहुत कम काम हुआ है यहाँ पर और करना भी कोई नहीं चाहता है, तो न ही सरकारी तौर पर इसकी कोई पजीराई होती है, तो इसलिए वो नहीं हो रही है। अफसानी मजमूए 2 हैं मेरे, उन पर भी बिल्कुल काम तैयार है। मेरे पास फुर्सत नहीं है कि मैं उनको तरतीब दे सकूं, क्यों, यहाँ से मसरूफियात हैं, यहाँ से पेशा वराना हमारे काम रहते हैं, उनके साथ मुंसलिक, फिर शाम को घर पे थोड़ा घर वालों के साथ, फिर थोड़ा अपना काम है। हालांकि मैं घर वालों को वक्त बहुत कम दे पाता हूँ, ज़्यादा मैं अपने फ़ोन पर ही होता हूँ या अपने काम के साथ काम रखता हूँ। तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में जो है मेरी 5 साल किताबें इंशाल्लाह जो है वो हर हालत में आएंगी। एक नावल है वो कल्चर एकेडमी के पास पढ़ा हुआ, अप्रूव हो गया है, पहाड़ी का नावल है, 300-400 पेज का है, कबीला नाम से है, वो भी तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, वो भी इस बार मंजर आम पर आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जाने के बाद कुछ ना कुछ समाज को दिया जाए ताकि वो यादगार के तौर पर लोगों के पास रहे। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि मुझ पर कई 2-3 यूनिवर्सिटियों के लड़के जो है वो थीसिस लिख रहे हैं, वो MPhil कर रहे हैं, उनके साथ ताल्लुकात है, वो बेचारे मवाद शवाद लेते हैं, करते हैं काम, हमारे अफसानों पे करते हैं, शायरी पे करते हैं। हमने आपके नहायत ही बिजी शेड्यूल में आपका इतना वक्त लिया, आपने इतना वक्त हमारे लिए निकाला, हम आपके नहायत ही मशकूर हैं। आपकी 2025 में किताबें आ जाएंगी इंशाल्लाह, तो हम उनको बहाना बना के एक बार फिर आपके वक्त का ज़िया करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।